सो एक इंडस्ट्री में एक चीज़ है जो मैंने विद टाइम बहुत देखी है दैट यहाँ पे जो बिग पीपल हैं दे विल नॉट फॉलो यू। बिग पीपल विल नॉट क्लिक फोटोज विद यू। आप दे विल एक्सपेक्ट कि हाँ आप ही करोगे, आप ही एंड यू विल टैग देम, दे विल जस्ट रीशेयर दैट। सो मुझे ये कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं समझ आया कि ये करके वॉट दे आर अचीविंग या वो कैसे अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो एंड माई अप्रोच इज नेवर लाइक दिस। आई एम लाइक इफ़ यू हैव समथिंग, यू अचीव समथिंग रियली गुड, आई स्वेयर ऑन गॉड मुझे खुशी होगी दैट यू अचीव दैट बिकॉज वो आपने अपनी मेहनत से, अपने हार्ड वर्क से, अपने पैसों से करा है। कंटेंट क्रिएटर कभी बनना ही नहीं था, ये कभी सोचा ही नहीं था, एंड उसके साथ साथ कब इन्फ्लुएंसिंग स्टार्ट हो गई ये बिल्कुल भी नहीं पता चला। आई लाइक वेयर आई एम नाउ एंड होल प्रोसेस आपको एक बेटर पर्सन बनाता है। Hi, this is Amanpreet Wahi, and I welcome you to yet another exciting episode of our podcast on Edge Talks. And today we have a very pretty girl. She's a makeup artist as well, an influencer, and she has had experience in the corporate world as well. Her name is Simran Wadhwa. Welcome, Simran, to our show. Thank you for calling me. So, our viewers would like to know what inspired you to get into makeup and who inspired you and how did this journey begin? This is totally unplanned. I never thought I'll be in this industry. I did my BBA and then I did MBA thinking that I'll go in corporate sector, and जो मैंने किया भी. But eventually I turned into a model, then I started makeup, and then कब influencing start हो गई, so nothing was planned, and जैसे जैसे हुआ I started loving all this. And you're from Kolachi Hansraj School with no glamour background. तो क्या मतलब people must be thinking कि अरे corporate world में जाना है, MBA करनी है, ये करना है, वो करना है, तो कैसे हुआ? सी कुलाची आपने मेंशन करा ना, तो कुलाची यूज्ड टू बी अ वेरी दैट काइंड ऑफ बदमाश काइंड ऑफ स्कूल. So yeah, and my family is also from service and business class only. So in my whole family कोई भी ऐसा glamour या इस side नहीं है. I am the only one who is pursuing this. But I was always attracted towards glamour, fashion and all. So I started modeling for makeup artists. Like one of my friend was doing learning makeup. So she asked me कि तू मेरी model बन जाया कर, and from there this all. Yeah, so you acted like a muse for her. Nice. So Simran, you worked in Kotak Security Stock Market or modeling, makeup artist, and then influencing. How was the journey after leaving the corporate world? So like I did hardly for 7 or 8 months, and मुझे पता था कि this is not my kind of job and I'm not meant for Your here. heart was not there. Yeah, it was totally not there. In fact वहाँ पे भी मुझे लोग बोलते थे कि you are at wrong place. So after leaving that job I started makeup. I learned makeup, professional makeup course करा, and then it all started. I did lots of shoots and makeups and influencing and all. So yeah, and I think I'm at the right place now. So do you think makeup has more money than modeling? Like I've modeled so much and I don't think modeling has any less money, but yes, I can say that makeup has a little bit more of shelf life, I would say. No, the kind of modeling you have done is like on next level kind of modeling. I used to be a very normal model for makeup artist, and I have done for many renowned Parul Garg ma'am, Meenakshi Dutt ma'am. Okay. So, but I thought no, it's not like a very long term wali thing. And makeup में ज़्यादा inclined हुई मैं. So yeah, I learned. So has any makeup artist inspired you? Yeah, I love Leena Bhushan's makeup a lot, and yeah, I love her base. What are your career goals as a makeup artist? सो माई करियर गोल्स एज अ मेकअप आर्टिस्ट इज़ दैट अभी बहुत आगे जाना है, एंड आई नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज आप मेकअप में कभी भी लर्निंग स्टॉप नहीं कर सकते. बी ऑलवेज ओपन फॉर लर्निंग, एंड ऑब्वियसली आई हैव ड्रीम्स टू हैव माई ओन स्टूडियो, एंड आई हैव ड्रीम कि इतने सारे क्लाइंट्स आए, भर भर के क्लाइंट्स आए. सो या ड्रीम्स बहुत हैं एंड गोल्स बहुत हैं इन टर्म्स ऑफ मेकअप, एंड आई नो एंड आई बिलीव कि पूरे होंगे. Abhi, you're freelancing. You go to people's houses. Okay. So what do you see as most significant trends or development in the makeup industry right now? Now makeup is all about being natural Yeah. and subtle makeup. No one needs now cut crease and double heavy glitters and all. सबको natural चाहिए. Any makeup trends you like and you don't like? So I like that thing, especially Leena ma'am जिस तरीके से blush लगाती है, I also do like that only. Fuller blush लगाती हूँ, एक ऐसे line नहीं आती
ऐसे हार्श लाइन नहीं आती. सो आई डिसलाइक दिस थिंग कि अगर कोई ब्लश इतना हार्श लाइन उसमें एजेस बन रही है तो. ऑल्सो लाइक वेरी कलरफुल आईज आई डोंट लाइक. आजकल बहुत सटल मेकअप का ट्रेंड है. सो जितना सटल रह सके आई लाइक दैट थिंग. एंड ऑल्सो फुलर लिप्स का भी ट्रेंड चल रहा है आजकल, लाइक पाउटी लिप्स. सो या. Nice. So what skills do you feel are most important for a makeup artist? Skills, first thing is patience, which I also have learned. Still I'm learning because I'm very I know clients can be really yeah, difficult. very bringy types. And so patience, then it's all about your hard work, because यहाँ you can never stop learning. Learning is kind of, आप कितने भी आगे चले जाओ, you can never stop learning. तो ऐसे क्लाइंट्स आते हैं डिस्कंटल, आपको ये नहीं लगाना आ रहा, वो मेरी आंख में लग रहा है, आपके बैड प्रोडक्ट्स हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, सो मेनी थिंग्स दे. एंड कई क्लाइंट्स आर लाइक अ केक वॉक आल्सो, जो आराम से बैठ जाते हैं एंड दे ट्रस्ट यू. बट कई क्लाइंट्स, सो व्हाट आर द बिगेस्ट चैलेंजेस you feel as a सो makeup चैलेंजेस फॉर अ मेकअप आर्टिस्ट आज की डेट में है प्राइस. आजकल हर टाइप का मेकअप आपको कितने भी प्राइस पे मिल रहा है, बिकॉज लाइक बिगनर मेकअप आर्टिस्ट आपको बहुत सस्ता मेकअप भी दे रहे हैं. गुड मेकअप आर्टिस्ट उनका एक लेवल है, दे हैव अ क्लास, वो एक बिल्ड कर चुके हैं अपना एम्पायर. सो वही मेकअप आपको 90,000 में भी मिलेगा और आपको 10,000 में भी मिलेगा. सो ये एक चैलेंज है ऑफ लाइक चार्जेस का. एंड यही बिगेस्ट चैलेंज है आई थिंक. Hmm. How do you collaborate with hairstylists, wardrobe, and other members of a creative team to achieve a cohesive look? तो आपकी एक set team रहती है या फिर आप every time you like to experiment with different hairstylists? I have a hairstylist and usually I go to him only, but otherwise I have many contacts. When I have to do a shoot, then due to influencing, I have contacts that I collaborate with jewelry person, I collaborate with outfit person, and then बहुत अच्छा shoot निकल के आ जाता है. So I achieve that look जो मुझे करनी होती है. तो फेशियल फीचर्स देख के आप कलर थ्योरी पे काम करती हैं कि इट्स जस्ट द सेम. देयर वाज अ मेकअप आर्टिस्ट लॉन्ग टाइम बैक, शी वाज वेरी फेमस. तो मुझे लगता है वो एक ही आई शैडो सब ब्राइड्स पे एक ही आई शैडो हो जाता था, बस मरून, दैट्स इट. बट शी वाज सो बिग, शी वाज अ हिट. बट एवरी आई मेकअप लुक द सेम. तो आपका ऐसे रहता है या यू? No. I love to do creativity on eyes and अलग अलग eyes करना, so that new looks आ सके. And when it comes to model, see, because clients are like all type of clients. आपके Yeah. पास हर skin tone आएगी, skin color आएगा. So आपके पास acne skin भी आएगी when I'm talking about clients. So आप उसमें इतना ज़्यादा creativity नहीं कर सकते and experiment नहीं कर सकते. When you are doing a shoot, you are investing in that. यू हैव तब आपके पास एक टाइम है कि आप क्रिएटिविटी कर सकते हो. सो आई प्रेफर अ गुड फीचर्स वाली मॉडल सो दैट आई कैन अचीव अ गुड लुक एंड डू एक्सपेरिमेंट्स. So initially, what drew you to modeling? When I was a model, Yeah. I तो did अभी modeling नहीं करते? no, not Okay. I do only for like brands, labels हो गए, and for exhibitions, but like for wedding setup I did a shoot last month only, but not for makeup artist. In fact makeup artists भी prefer नहीं करते. Being a makeup artist, no one will take you as a model. तो मॉडलिंग और मेकअप आर्टिस्ट बनने में, इस ग्लैमर इंडस्ट्री में आने में शुरू में क्या चैलेंजेस लगे? शुरू में challenges थे that here people are like very like politics होती है, हर जगह होती है. Everyone is like Very much. very diplomatic. So being a very innocent girl, मुझे नहीं पता होता था कि क्या बात करनी है, क्या बताना है, क्या नहीं बताना. I was like very open hearted. So I learned this. I got lot of maturity and I learned कि कैसे कौन सी बात बतानी है और कौन सी बात नहीं बतानी है. तो मॉडलिंग ज्यादा डिफिकल्ट थी या बीइंग ये जर्नी जो आपने करी टू बिकमिंग अ कंटेंट क्रिएटर? कंटेंट क्रिएटर कभी बनना ही नहीं था, ये कभी सोचा ही नहीं था. हाँ, मेकअप आर्टिस्ट ज़रूर बनना था. एंड उसके साथ साथ कब इन्फ्लुएंसिंग स्टार्ट हो गई ये बिल्कुल भी नहीं पता चला. एंड देन आई स्टार्टेड लाइकिंग इट. जब ब्रांड्स आने लगे, कोलैब्स आने लगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा. आई स्टार्टेड गेटिंग दैट कॉन्फिडेंस, रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट. तो मुझे ये सब बहुत अच्छा लगने लगा. तो इसी वजह से वो और बढ़ता गया एंड इट केप्ट ऑन इंक्रीजिंग. सो या. ये ज्यादा अच्छा लगता है, क्या डिफिकल्ट लगा दोनों में? एंड हाउ डिड दैट ट्रांजिशन हैपन? I like where I am now and whole process आपको एक better person बनाता है. So जो जितना कुछ सीखा अभी तक from day one to till now, I have as a person I have grown a lot. तो सिमरन, यू जॉइंड सोशल मीडिया इन 2017, तो वो जर्नी कैसी रही आपकी?
So initially, like if I talk about 2017, tab it was all like very normal. I was not into even modeling, but yeah, 2018 mein everything started. Okay, great. So, how has social media impacted your career, and what strategies do you use to connect with your audience? अगर आपकी बात करूँ तो Instagram is all about business now. So it is For giving, so many people, it's yeah. doing so well. Insta is now business and it is giving you money, it is giving you clients, and Instagram is a page, is a platform जहाँ आप अपने वर्क को डिस्प्ले कर सकते हो. सो अब तो Instagram इज़ वेरी एसेंशियल इन माई लाइफ, एंड बहुत इंस्टा ने दिया है मुझे, बहुत क्लाइंट्स दिए हैं, एंड बहुत रिकॉग्निशन भी दी है. सो So, what type of content do you feel resonates most with your followers, and how do you keep your content fresh and interesting? Because Insta, as you said, Instagram is like everyone's on Insta, everyone's on social media, और इतने लोग content creators हो गए, इतने लोग influencers हो गए, so people followers इधर उधर shift भी हो जाते हैं कि चलो अब इसको follow करते हैं, इसका interesting है, इसका boring है. So how do you keep that? I keep that fresh by creating new and new content. I do lots of shoots and see, आपको ट्रेंड को भी फॉलो करना पड़ता है. समटाइम्स कोई एक सॉन्ग अगर ट्रेंडिंग चल रहा है तो उस पर रील बना के. सो या आई कीप ऑन डूइंग ऑल दिस थिंग्स. मैं मेकअप को भी डिस्प्ले करती हूँ, अपने आप की भी रील्स बनाती हूँ कि हर चीज़ में इंगेज रहें. कॉमेडी भी हो जाता है, मेकअप भी हो जाता है. सो या तो सिमरन इतनी विजुअल एंड पर्सनल इंडस्ट्री है ये एंड इंस्टाग्राम पे सब कुछ दिखता भी है लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट वी डोंट वांट टू शो आल्सो वो भी दिख जाता है पर सो इस इतनी विजुअल इंडस्ट्री में हाउ डू यू हैंडल द नेगेटिव कमेंट्स एंड क्रिटिसिज्म एंड ट्रोलिंग इनिशियली मैटर करता था. सी आई थिंक सबको करता है. दिस इज़ वॉट यू कॉल ग्रोथ. इनिशियली हर कोई इम्पैक्ट आ जाता है सब पे, देन यू स्टार्ट इग्नोरिंग इट एंड आप थिक स्किन बन जाते हो. सो या अब मैं इतना नहीं मुझे बॉदर करता. इनिशियली आई यूज़ टू लाइक, मुझे बहुत जल्दी एंगर आ जाता था. लाइक आई यूज़ टू बी वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, तो मुझे होता था कैसे बोल दिया एंड ऑल, बट अब नहीं फ़र्क पड़ता. So, Simran, how do you think the makeup industry balances the celebration of individual beauty and self expression with the pressures of unrealistic beauty standards, especially given the rise of social media influence? What I'm trying to say is कि, social media पे आजकल आपने देखा है, and, मैं भी बहुत आजकल नेचुरल फोटोज बहुत कम हो गई है. we're all using filters and पता नहीं कौन कौन से ऐप हैं. So we all, when I was modeling, at the peak of my career, magazine covers and people used to come up to me and say, wow, you look perfect. And I used to think that it's such a fake beauty standard because even I'm not perfect and there is a whole team working around us to make us look perfect. तब फिल्टर नहीं होते थे तो फोटोशॉप होती थी. अब फिल्टर्स हैं. तो हाउ डू यू फील कि ये सोशल मीडिया का क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है ऑन छोटी छोटी गर्ल्स भी इम्पैक्ट होती हैं ये सोच के कि माय गॉड ऐसे परफेक्ट बनना है बट even Kylie Jenner doesn't look like what she looks like in pictures. So what do you feel about that? सी अब यू आर एब्सोल्युटली राइट. ये इतने सारे फिल्टर्स एंड ऑल आ गए हैं, बट अब एक्चुअली नॉलेज भी उतनी आ गई है. इंस्टाग्राम ने इतनी नॉलेज इन एवरी टाइप, हर टाइप में बहुत नॉलेज अब मिलने लग गई है. सो इनफैक्ट नाउ क्लाइंट्स आर ऑल्सो अवेयर. बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट, दे सेंड मी मैसेजेस दैट आप अपनी नॉन एडिटिंग वाली पिक्स भेजो सो दैट वी कैन जज. सो क्लाइंट्स आर ऑल्सो अवेयर, एंड जो नहीं होते अवेयर, सो वी आर गिविंग देम नॉलेज. सो मैं तो कोई फिल्टर्स यूज़ नहीं करती, कोई एडिटिंग यूज. Very good, because a lot of makeup artists I know use a lot of filters. No editing at all. Filters may I openly say just a Paris filter, a normal Paris filter. Otherwise, there is no editing, no changing of nose or change jaw line आ रही है, nothing, nothing, nothing. मुझे तो लगता है आजकल लोग कई कई बारी मैं देखती हूँ ये कॉस्मेटोलॉजिस्ट की के बिफोर एंड आफ्टर. आई एम लाइक ये कैसे हो सकता है. आई थिंक दैट्स एआई. वो सडनली एक 50-year-old वुमन स्टार्ट्स लुकिंग 20, सो दैट्स लाइक अनरियल. Start believing that, Yes. and then एक अलग ही इससे भी डिप्रेशन होता है. गर्ल्स आर इनटू डिप्रेशन कि हमें भी इतना सुंदर बनना है. No, हम क्यों नहीं परफेक्ट लग रहे. this is all fake, all fake. No one is perfect, and with age everyone will like थोड़ा सी aging तो सब में आएगी with. बिल्कुल, aging is natural, of course. So, Simran, how do you ensure that your audience remains organic and not just, a result of paid promotions or follower buying tactics, जो कि आजकल बहुत लोग कर रहे हैं?
So I have many DMs like this for paid followers and everything. But to be very honest, my followers like 26.2 or 26.3K. These are all naturals. Organic. Because अगर paid करवाना ही होता तो अभी तक तो it's been so long now in this industry, more than 3-4 years. मैं भी अभी तक 50 और 80K पे पहुंच चुकी होती. एंड वन मोर थिंग विच आई लाइक टू से इज़ कि मेहनत करो ऑब्वियसली, जितना फ्रेश कंटेंट डालोगे एंड यू शुड बी कंसिस्टेंट. ऐसा नहीं है कि आप आज कोई रील डाल रहे हो देन 1 वीक बाद यू आर पोस्टिंग समथिंग. रोज यू हैव टू, एवरी डे यू हैव टू पोस्ट समथिंग. एंड उससे ऑब्वियसली आपको ऑर्गेनिक रीच मिलेगी और ऑर्गेनिक फॉलोअर्स मिलेंगे. सो आई विल नेवर प्रमोट कि आप बाय करो फॉलोअर्स को, व्यूज़ अपने बाय करो. स्टे ऑर्गेनिक, मेहनत करो, मेहनत से डरो मत. रोज रील्स डालो, कुछ ना कुछ फ्रेश डालते रहो. ट्रेंडिंग रील्स पे आप रील्स बनाओ तो ऑब्वियसली ऑर्गेनिक पीपल विल स्टार्ट फॉलोइंग यू एंड ऑर्गेनिक रीच आएगी. People are doing that, and people who had started much after me, they don't have any following, उनका content भी इतना बकवास है, and they have double the followers than me. वो समझ में आ जाता है कि कहाँ organic है और कहाँ non organic है. So Simran, बहुत सारी चीजें हैं about Insta which are positive. Women are supporting each other. We are in touch with each other. हमारा business अच्छा चलता है. दिखोगे तो बिकोगे, like they say. It's so important to be on social media. But एक social media का एक undercurrent negativity भी है. I feel it. I definitely feel it. लोग मुंह पे नहीं बोलते, but corner of the eye, that negative energy you see. अच्छा आ गई, इसका post आ गया. इसका post तो मैं particularly like नहीं करूँगी. So all this इतनी undercurrent negativity क्या है इंस्टाग्राम पे, एंड हाउ डू यू हैंडल दैट? एंड मेकअप आर्टिस्ट एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, नहीं करते, या एवरीवन इज जस्ट जेलस? सो एक इंडस्ट्री में एक चीज़ है जो मैंने विद टाइम बहुत देखी है, दैट यहाँ पे जो बिग पीपल हैं दे विल नॉट फॉलो यू अनटिल अनलेस या तो आपके रिलेशंस अच्छे ना बन जाएं, तो दे विल नॉट फॉलो. इनफैक्ट दे लाइक ओ शी इज जस्ट स्टार्टिंग आउट, इसके तो इतने एंड वैलिडेशन देने लग गए. Exactly. अच्छा फॉलोअर्स है तो आप पॉपुलर हो, नहीं है तो आपको कौन पूछ रहा है? एंड देन फोटो का भी यहाँ पे बहुत है, पिक्स क्लिक करने का, कि बिग पीपल विल नॉट क्लिक फोटोज विद यू. आप दे विल एक्सपेक्ट कि हाँ आप ही करोगे, आप ही, एंड यू विल टैग देम, दे विल जस्ट रीशेयर दैट. सो मुझे ये कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं समझ आया कि ये करके व्हाट दे आर अचीविंग, या वो कैसे अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हैं. आई थिंक बिग पीपल वो हैं जो लाइक दे आर कॉर्डियल, दे आर सपोर्टिंग ईच अदर. वही एक्चुअली में बड़ा इंसान है. तो यहाँ पे बहुत है फ़ोटोज़ लेना एंड फॉलो नहीं करना. एंड एंड मेकअप आर्टिस्ट की अगर बात करूँ तो दोनों टाइप के यहाँ पे लोग हैं. मेकअप आर्टिस्ट सपोर्ट भी करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट दूसरे मुआ को बहुत सपोर्ट करते हैं. इनफैक्ट कभी कभी बुकिंग्स भी दे देते हैं इफ दे आर नॉट अवेलेबल ऑन दैट डेट. बट कोई कोई ऐसे हैं दे आर एक्चुअली वेरी जेलस एंड कॉम्पिटिशन है. जान के भी बोल देंगे नो आई एम एग्जैक्टली और शी इज वेरी बैड. एग्जैक्टली. सो कहीं ना कहीं दे आर जेलस ऑफ यू, या थोड़ा सा उनमें कॉम्पिटिशन वाइब रहती है कि ये क्यों आगे निकल गई, या कोई भी जैसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं. इफ़ यू आर अचीविंग समथिंग, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देख के भी, एग्जैक्ट जो आपने बोला था, देख के अनदेखा कर देंगे. दे विल नॉट इवन कॉन्ग्रेचुलेट यू. सो सिमरन, बहुत सारी चीजें हैं अबाउट इंस्टा विच आर पॉजिटिव. women are supporting each other. We are in touch with each other. हमारा business अच्छा चलता है. दिखोगे तो बिकोगे, like they say. It's so important to be on social media. But एक social media का एक undercurrent negativity भी है. I feel it. I definitely feel it. लोग मुंह पे नहीं बोलते, but corner of the eye, that negative energy you see. अच्छा आ गई, इसका post आ गया. इसका post तो मैं particularly like नहीं करूँगी. So all this इतनी undercurrent negativity क्या है इंस्टाग्राम पे, एंड हाउ डू यू हैंडल दैट? एंड मेकअप आर्टिस्ट एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, नहीं करते, या एवरीवन इज जस्ट जेलस? सो एक इंडस्ट्री में एक चीज़ है जो मैंने विद टाइम बहुत देखी है, दैट यहाँ पे जो बिग पीपल हैं दे विल नॉट फॉलो यू अनटिल अनलेस या तो आपके रिलेशंस अच्छे ना बन जाएं, तो दे विल नॉट फॉलो. इनफैक्ट दे लाइक ओ शी इज जस्ट स्टार्टिंग आउट, इसके तो इतने एंड वैलिडेशन देने लग गए. Exactly. अच्छा फॉलोअर्स है तो आप पॉपुलर हो, नहीं है तो आपको कौन पूछ रहा है? एंड देन फोटो का भी यहाँ पे बहुत है, पिक्स क्लिक करने का, कि बिग पीपल विल नॉट क्लिक फोटोज विद यू. आप दे विल एक्सपेक्ट कि हाँ आप ही करोगे, आप ही, एंड यू विल टैग देम, दे विल जस्ट रीशेयर दैट. सो मुझे ये कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं समझ आया कि ये करके व्हाट दे आर अचीविंग, या वो कैसे अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हैं. आई थिंक बिग पीपल वो हैं जो लाइक दे आर कॉर्डियल, दे आर सपोर्टिंग ईच अदर. वही एक्चुअली में बड़ा इंसान है. तो यहाँ पे बहुत है फ़ोटोज़ लेना एंड फॉलो नहीं करना. एंड एंड मेकअप आर्टिस्ट की अगर बात करूँ
तो दोनों टाइप के यहाँ पे लोग हैं। मेकअप आर्टिस्ट सपोर्ट भी करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट दूसरे मुआ को बहुत सपोर्ट करते हैं, इनफैक्ट कभी कभी बुकिंग्स भी दे देते हैं इफ दे आर नॉट अवेलेबल ऑन दैट डेट। बट कोई कोई ऐसे हैं दे आर एक्चुअली वेरी जेलस एंड कॉम्पिटिशन है। जान के भी बोल देंगे नो आई एम एग्जैक्टली एग्जैक्ट और शी इज वेरी बैड। एग्जैक्टली सो कहीं ना कहीं दे आर जेलस ऑफ यू, या थोड़ा सा उनमें कंपटीशन वाइब रहती है कि ये क्यों आगे निकल गई, या कोई भी जैसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इफ़ यू आर अचीविंग समथिंग। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देख के भी एग्जैक्ट जो आपने बोला था देख के अनदेखा कर देंगे, दे विल नॉट इवन कॉन्ग्रेचुलेट यू। सो एंड दे लाइक हाय बेबी ओ यू वर देयर आई डिडंट सी यू। एग्जैक्टली तो सिमरन अब रिलेशनशिप्स के बारे में भी हमने बात की। सो व्हाट डज सिमरन वांट टू डू इन हर लाइफ? इज शी इन अ रिलेशनशिप? डज शी वांट टू गेट मैरिड? और आजकल बहुत लोग डिसइल्यूजन है शादी से, उनको करनी ही नहीं है। आजकल शादी करना इज़ अ वेरी बिग थिंग, एंड उसके बाद भी यू नेवर नो कि ये कब तक साथ चलेगा नहीं चलेगा, बिकॉज डिवोर्स इज सो कॉमन नाउ इट इज। सो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम लाइक हैप्पी बीइंग सिंगल, एंड फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम आई एम सिंगल एंड आई एम हैप्पी बीइंग सिंगल, एंड अभी शादी का ऐसा कुछ भी नहीं है। जब सही लगेगा व्हेन आई विल फाइंड द राइट गाय आई विल गेट मैरिड। Awesome. I'm happy if I turn 30 or 35 and still I'm single. I am happy because when you're earning good, you have your family support and you are living a life of your own choices and decisions. So I don't think so. There is no rush of getting married. तो सिमरन बहुत बारी ऐसा भी होता है कि व्हेन यू बिकम पॉपुलर तो दुनिया आपके लिए बहुत ज़्यादा खुश होती है, और आपको भी बहुत अप्रिसिएशन मिलती है, अच्छा लगता है कि पीपल आर फॉलोइंग यू, पीपल आर अप्रिशिएटिंग यू, दुनिया आपके लिए एक्चुअली में खुश है कि आपने इतना अच्छा किया। एंड समटाइम्स ऐसे होता है कि आपके जो क्लोजेस्ट फैमिली, कजन्स, फ्रेंड्स होते वो ही आपसे इतना जेलस हो जाते हैं कि ओ माय गॉड वेयर हैज शी रीच, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था इतनी सक्सेसफुल हो जाएगी। तो हाउ हैज दैट बिन? ऐसा एक्सपीरियंस आपके साथ रहा है? एग्जैक्टली हुआ है, क्यों नहीं हुआ। एंड आई थिंक इन फ्रेंडशिप मैंने हर टाइप का फ्रेंड देख लिया अपनी लाइफ में। सम वेरी गुड फ्रेंड्स जो जेन्युइनली आपके लिए हैप्पी हैं, एंड कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ प्रिटेंड करते हैं दैट या मे यू अचीव हाइट्स एंड ऑल, बट पीछे से दे really don't want कि आप आगे जाओ। फैमिली में भी my family is supportive, nice, and like my parents are really supporting, understanding, बहुत अच्छे हैं। but when it comes to relatives, तो relatives are never your parents, so they can never be that much happy और support नहीं कर सकते जितने आपके parents करते हैं। and when it comes to friends, कितने अजीब-अजीब केसेस मैंने सुने हैं कि मेरी एक फ्रेंड वाज़ बीइंग स्टॉक्ड बाय वन ऑफ हर क्लोजेस्ट फ्रेंड्स जिसको उसके सारे सीक्रेट्स पता थे, और वो डिफरेंट फेक प्रोफाइल्स बना के उसी को स्टॉक करती थी, उसी पे नेगेटिव कमेंट्स डालती थी, एंड वी गॉट टू नो लेटर ऑन। आई मीन इट इज़ जस्ट क्रेज़ी, इट्स हाइट ऑफ this जेलसी। is jealousy ना। Yeah. this is like they are jealous कि जो उसके पास है वो मेरे पास क्यों नहीं है। बिल्कुल। So, and my approach is never like this. I am like, if you have something, you achieve something really good, I swear on God, मुझे खुशी होगी that you achieve that, because वो आपने अपनी मेहनत से, अपने हार्ड वर्क से, अपने पैसों से करा है। I'll be like कि मुझे भी मतलब वो दिन कब आएगा when I'll also have this, but I'll never be jealous कि उसके पास क्यों है। I am not that. But दुनिया, and my friend said one day, and it just like it's been in my mind since then कि लोग अपने सुख से सुखी नहीं है, लोग अपने दुख से भी दुखी नहीं है, लोग दूसरे के सुख से दुखी हैं। Exactly. तो यही कहानी चल रही है आई थिंक दिल्ली में एंड द वर्ल्ड ओवर। पूरे वर्ल्ड में ये चल रहा है। एंड आई हैव फ्रेंड्स, मतलब आई वोंट नेम देम ऑब्वियसली, बट हु आर नाम के फ्रेंड्स हैं, दे आर गुड ऑन माई फेस, बट पीछे से दे रियली डोंट वांट गुड फॉर मी। या पॉजिटिव कुछ भी नहीं है उनके बारे में, नेगेटिव एनर्जी, एंड देन दे, मुझे तो लगता है उनकी नेगेटिविटी हमारे पे रब ऑन भी कर जाती है। दैट्स व्हाई दे डू से कि संगति का असर, तो सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिविटी एंड वाइजली किसके साथ उठना बैठना है। Okay, Simran, so of course we've discussed negative elements, positive elements of being in the entertainment industry, being famous, having followers, being on social media as an influencer. तो क्या positive पाया है? I mean, have you gained good friends out of this as well? या आई हैव फ्यू फ्रेंड्स जो मुझे इस इंडस्ट्री में मिले, एंड दे आर लाइक वेरी ट्रस्टवर्दी, एंड उनको मैं अपने क्लोज फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स में काउंट कर सकती हूँ, एंड आई कैन गो टू देम कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो। बट इस इंडस्ट्री में फ्रेंड्स बनाना इज़ वेरी रेयर, एंड अगर आपको कोई ट्रू फ्रेंड मिल रहा है तो जस्ट ग्रैब दैट एंड उनको रखो अपने साथ, बिकॉज दिस इज़ रेयर, क्योंकि यहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत है एंड एवरी वन इज़ लाइक not happy seeing your. Yeah, undercutting each other. So yeah, I have few friends, and I'm happy that, and I'm grateful कि वो मेरे friends बने। तो
Let's talk about a very popular concept nowadays, manifestation. We're all talking about manifestation. तो क्या आपने कभी manifestation का concept अपने career में use किया है, और अगर हाँ तो उसका experience क्या रहा? मैनिफेस्ट इतना यूज़ करा है कि आज जो है वो सब अच्छा। आई थिंक उसकी वाह। वजह से ये बिकॉज ऑफ माई थॉट्स, बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन एंड आई डोंट नो, मैं इनफैक्ट बहुत ज्ञान देती हूँ, लाइक माई फैमिली सेज यू, मतलब आप काउंसलर बन सकते थे, इतना यू गिव गुड थिंग्स। मैं सबको समझाती हूँ कि डोंट टेक दिस लाइटली, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। इट डेफिनेटली इट वर्क्स एंड जो आप सोचोगे वही होता है। तो कोई टेक्निक हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहती हैं, फेवरेट प्रैक्टिसेस मेरे साथ शेयर करना चाहती हैं, आई विल आल्सो फॉलो दैट, राइट? There was a time in my life when I was like, it was kind of a downfall only in every sense, personally also, in personal life also. So इतना fear, इतनी anxiety and ये सब होता था, कुछ अच्छा नहीं लगता, you started hating yourself, अपने में ही कमियां दिखने लग जाती हैं। बट यही एक जर्नी है, दिस इज कॉल्ड अ स्पिरिचुअल जर्नी। Yeah. सो वो स्पिरिचुअल जर्नी में इतनी ग्रोथ आई है कि ना, आपको बस अच्छा सोचना है। दिस इज द टेक्निक विच आई कैन टेल, बस बी हैप्पी एंड बस अच्छा कुछ आपके फेवर में नहीं भी है, स्टिल यू थिंक दिस विल टर्न इन माई फेवर, ऐसा हो जाएगा, एंड वो हो जाता है। सो इट्स ऑल अबाउट योर तो आज से ही मैं सोचने वाली हूँ कि मुझे दिवाली पे बहुत ज्यादा विनिंग करनी है, जीतना है। मैं ये मैनिफेस्ट कर इट्स ऑल अबाउट आप लक्ष्मी घर आए। कितने फर्मली आप उसमें बिलीव कर रहे हो। इट्स ऑल अबाउट बिलीविंग दैट ऐसा होके रहेगा। सिमरन, यू लुक वेरी वेरी यंग, एंड मुझे नहीं पता आपका सिंगल स्टेटस है या टेकन स्टेटस है ऑन कैमरा, आई एम आस्किंग यू, बट थोड़ा रिलेशनशिप और लव के बारे में बात करते हैं। सो डू यू बिलीव इन ट्रू लव? Yeah, definitely. I am a very emotional kind of person. So, yeah, I trust people very easily, and yeah. But abhi, with the onset of social media and digital age, and everyone's just showing relationships which just looks perfect on camera, on Insta. Oh my God, they're standing next to their BMW and they're traveling and such a nice couple, and असली में एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे होते. So how do you think this whole digital media and social media has affected relationships in today's age? They have affected really a lot because एक मतलब फ्रॉम अ गर्ल पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम अ बॉयज़ पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों का देखने का एक व्यू चेंज हो चुका है। एंड इट्स फॉर गर्ल्स आई थिंक, एंड फॉर इवन बॉयज़ ऑल्सो, मनी मैटर्स अ लॉट, योर फाइनेंशियल स्टेटस मैटर्स अ लॉट। गर्ल्स ऑल्सो सी कि कौन सी लग्जरी कार है उसके पास, तब मैं उसको अपना बॉयफ्रेंड बनाऊंगी और आई कैन सी फर्दर। सो या ये सोशल मीडिया ने इसमें बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट करा है। एंड आई वुड सजेस्ट, आई वॉज नॉट लाइक दिस, बट या माई माइंड सेट चेंज कि अपने रिलेशनशिप्स को जितना छुपा के रख सकते हो ना रखो, बिकॉज नज़र एक्चुअली इज इट्स रियल एंड लग जाती है। सो कुछ चीज़ों को प्राइवेट ही रखना चाहिए। तो आजकल अकॉर्डिंग टू यू क्या बिगेस्ट चैलेंज कपल्स फेस करते हैं, एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज कम्युनिकेशन, जो कि आजकल नहीं हो रहा है बहुत सारी रिलेशनशिप्स में? आई थिंक, मुझे जहाँ तक लगता है कि बहुत बड़ा मिसिंग फैक्टर इज कम्युनिकेशन। या सो लाइक नाउ पीपल आर नॉट दैट रियल, खुल के कोई बात ही नहीं कर पाता। लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई एम अ पर्सन जो बहुत, आई एम वेरी टॉकेटिव, माई फ्रेंड नोज दैट कि आई टॉक अ लॉट, आई टॉक नॉनसेंस ऑल्सो समटाइम्स, बट आई लव टू टॉक। सो आई थिंक कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। आपको कुछ अच्छा लग रहा है, जस्ट स्पीक इट। कोई तारीफ करनी है, बोलो कि यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, एंड कुछ आपके दिल में है तो प्लीज़ क्लियर इट आउट इंस्टेड ऑफ कीपिंग ग्रजेस। आई थिंक क्लियर करना चाहिए। Communication is the key of any relation, be it be husband, wife, or friends, or any relation. so what is that one non-negotiable factor for you in a relationship? That is respect, and obviously communication matters for me. I need कि अगर कोई fight हुई भी है तो I want कि उसको as soon as possible उसको sort out कर दो, and उसको please इतना ज़्यादा उसको आगे नहीं लेके जाना। And respect is very Respect is very important for, and support also. I need like I expect कि my partner will support me in my career, in my dreams, and वो मुझसे proud होगा that yeah, Simran is doing good. so any key to maintaining a healthy relationship according to Simran? Any key to maintain? And she was like, what? आपने बोल ही दिया, इतना support होना चाहिए, respect, and of course communication. And now, yeah, respect is main thing. And I think non-negotiable जो काफी लोग बोलते हैं वो मिस हो गया है कि चीटिंग नहीं होनी चाहिए। Yeah, loyal होना चाहिए।
तो इफ यू कुड गिव वन पीस ऑफ रिलेशनशिप एडवाइस टू योर यंगर सेल्फ, अगर पिछली रिलेशनशिप से आपने कुछ सीखा है और आप वन पीस ऑफ एडवाइस अपने आप को देना चाहते हो, व्हाट वुड इट बी? दैट वुड बी दैट सब ठीक हो जाता है, बिकॉज उस टाइम ऐसा लगता था दैट दिस इज़ माई डूम्स डे और दिस इज़ द एंड ऑफ माई लाइफ, बट ऐसा नहीं होता. थिंग्स गो ऑन, लाइफ गोज ऑन, एंड टाइम हील्स मोस्ट ऑफ द थिंग्स. सो या, एंड ट्रस्ट ऑन गॉड. मेरा बिलीव इन गॉड with time it has increased a lot. So to younger me I'll advise कि be patient, believe in God, and at the end सब सही हो जाता है. टाइम हील्स मैनी थिंग्स, एंड विद टाइम यू ग्रो, एंड ग्रो करके बहुत चीज़ें समझ आती है, एक स्टेबिलिटी आती है जो आई थिंक यंगर सेल्फ में नहीं थी. तो बस. तो ये रिलेशनशिप्स ने आपको सिखाया है कुछ, और एक्सपीरियंस आपने किया है, लाइक लॉट आई आल्सो फील दैट पास्ट रिलेशनशिप से हमेशा कुछ ना कुछ आपने ऑब्वियसली सीखा है. कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है. दे मेक यू अ बेटर पर्सन. सो आई ऑलवेज थैंक ऑल दोज पर्सन्स कि वो मेरी लाइफ में आए, एंड उनकी वजह से ही मैंने बहुत कुछ सीखा है, एंड आई बिकेम अ बेटर पर्सन. करेक्ट. वाओ, पॉजिटिव इम्पैक्ट. Yeah, law of attraction is all about being positive. बस. So, Simran, now we have come to the last segment of our podcast. Last, but definitely not the least, but the most fun segment, and it's called Rapid Fire. And we're very inspired by Karan Johar with the coffee mugs and the rapid fire round. So, let's do this. My first, and you're not thinking, yes, absolutely. You're not thinking, no politically correct answers, fun answers. Okay, one word. What's the weirdest thing you've done? My brain just stopped when you asked this. Weirdest thing. कोई नॉटी चीज जो सिमरन ने करी हो और लोग सोचते हो सिमरन सो स्वीट, वो ऐसे कभी नहीं कर सकती. बिल्कुल भी माइंड में नहीं आ रहा है. मैं बता देती हूँ. आई हैव busted a cracker in my school toilet when I was young. तो ऐसी कोई मेमोरी अगर आपके पास है, and I said this in front of my daughter and she was like, what mom, you were so naughty. अच्छा, इस चीज़ से याद आया दैट माई मॉम इज़ अ वेजिटेरियन फ्रॉम लास्ट 15 और 16 ईयर्स, एंड मैंने उन्हें पैन फ्राइड नूडल्स, नॉन वेज पैन फ्राइड नूडल्स खिला दिए थे, चिकन निकाल के, Oh God. एंड बिना बताए उन्हें, एंड शी जस्ट एट दैट. That is one of definitely the weirdest thing. Correct. Very good answer. One thing you can't live without. Music and God. Yeah. Who do you look up to the most? God, your father, mentor. Yeah, exactly. My father and God. Nice. Coffee or tea? Coffee. Beach vacation or mountain getaway? Love mountains. Yeah, really, I love beach. Dogs or cats? None, because I'm scared of animals. Really? I love dogs. Early bird or night owl? Night owl. I'm always late. There we are similar. Sweet or savory? Both. Depends on persons and situations. Fiction or non-fiction? Movies? Like, Yes. yeah, fiction. I love fiction. Yeah, books, movies, fiction. City life or countryside? City. Comedy or drama? I love both, yeah. Summer or winter? Winters, just because I'm November born, so winters are my favorite. Really, the extreme winters also, which are coming up in December. Oh my God, I run away to Goa during those days. And I love winters. Yeah, okay, great. Books or movies? Movies, definitely. I hate books. I can never read any book. All right. Simran, so now we have come to the absolute last segment of our show where we're going to say bye. But before that, please give our viewers, whosoever is being interested in becoming a makeup artist or an influencer on social media, any advice you would like to give them? So for all makeup artists जो makeup को अपना profession बनाना चाहते हैं, I'll suggest them just pull up your socks and brace yourself up, क्योंकि बहुत competition है market में. I think every second, third person is a makeup artist आजकल market में. But आपको होप नहीं छोड़नी. ऑलवेज बी पॉजिटिव, एंड यही सोचो कि जितना आप हार्ड वर्क करोगे वो आज नहीं तो कल वो आपको पे करेगा ही करेगा, बिकॉज ऑल डेज आर नॉट सेम. कोई दिन ऐसा होगा जो बहुत अच्छा होगा, बट कोई दिन ऐसे भी होंगे जो बहुत बेकार होंगे. तो डिसअपॉइंट नहीं होना, बस स्किल्स पे काम करो, हार्ड वर्क करो, यू विल डेफिनेटली गेन योर सक्सेस. एंड फॉर ऑल द इन्फ्लुएंसर्स जो इन्फ्लुएंसिंग में आना चाहते हैं, सो इनिशियली
क्वालिटी एंड गुड कंटेंट अपने पेज पे डालो एंड ब्रांड्स को खुद अप्रोच करो, बिकॉज इनिशियली यू हैव टू अप्रोच ब्रांड्स विल नॉट अप्रोच यू बिकॉज दे डोंट नो यू. तो आप ब्रांड्स को मैसेज करो, कोलैब करो, इनिशियली बार्टर भी करना पड़े, सो देर इज़ नो हार्म, बट अपने पेज को अच्छा बनाओ, कंटेंट डालो उस पर, एंड देन ब्रांड्स विल डेफिनेटली अप्रोच यू, एंड देन यू कैन स्टार्ट like paid collabs and you can tell your commercials. But yeah, competition बहुत है, so disappoint नहीं होना. The only thing is be positive and आगे बढ़ते जाओ, एकदम ready हो जाओ to do lots of hard work. Yeah. And And there's so much competition. there is so much नहीं, बहुत, there is a lot of Everyone competition. Every second girl I think is a makeup artist nowadays, so competition is next level. So hard work बहुत करना पड़ेगा, but don't lose hope, because it's all about, it's not about the products, it's about your artistry. वो हर कोई कॉपी नहीं कर सकता. If you have अच्छी आर्टिस्ट्री है, एक अच्छी कला है, नो वन कैन बीट यू, यू विल ऑलवेज गो अहेड एंड गो ऑन एंड ऑन. सो या, होप, स्ट्रेंथ एंड पॉजिटिविटी ही है जो किसी भी करियर में, किसी भी रिलेशनशिप में आपको आगे लेके जाएगी. एंड इफ़ यू वांट टू बी एन इन्फ्लुएंसर, देन स्टार्ट डूइंग फॉर स्मॉल ब्रांड्स. एंड अगर बार्टर भी करना पड़े तो इनिशियली यू कैन डू इट, बट ग्रेजुअली यू कैन स्टार्ट टेलिंग योर कमर्शियल्स एंड यू कैन डू पेड थिंग्स. बट या, इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं. You just need that communication skills, you need that confidence. I think confidence the most important key. So thank you so much, Simran. You were absolutely a delight to be here on the show. Totally loved having you. Thank you so much, audiences, for joining us once again on your favorite podcast on Edge Talks. This is your host, Amanpreet Wahi, signing off.